Most Honorable Principal Sir, learned colleagues, and very special for this occasion, respected Dr. Ratna Sinha Sir and Umakant Maharaj Ji. We have gathered here to bid farewell to both of you. DPS Nigahi, since I joined, I have seen both of you always in the most dazzling and enthusiastic spirit. Dr. Ratna Sinha Sir, if I say something about you, I feel personally that you have been strongest pillar of DPS Nigahi family. Since I joined, I have been very closely associated with you as we were sitting together. So many things you shared, and they were always very enriching, inspiring for all of us. As Dr. Mishra Sir and Sharma Sir said, you are very avid, voracious reader. We have seen that you have been always engaged, and you will be always engaged in the learning. But there's something which I feel you have. You not only read, but you share your experiences with others, and that is a great contribution for the people associated with you. Some of the books I myself read because you inspired me. Like I read Sanskriti Ke Char Adhyay, wonderful book. I think all of us should read to know about our country. Your experiences, if you take or see in the classroom, you always create very positive environment. The lessons taught by you, they are not only connected with the text or the syllabus, but you bring your learning which are meaningful and valuable for the students. They will work for a lifetime. Your simplicity, your dedication for the school, and almost we all know that numerous reports about entire school life you wrote since I am here, and they all are a great message for the society to know about DPS. And very important thing what I have noted in you, that you understand very well to Honorable Principal Sir what Sir wants. I think you only write that without talking even to Sir. Many times I have seen Sir appreciated you about this skill as well as overall your personality. We are grateful that we got an opportunity to work together. Now, as you are leaving school, and Mr. Sir said that you should connect to spirituality, you are still not in fourth ashram, that is Adhyat. I feel, I cannot say that you are Naujawan, but I also feel little embarrassed if I say you Bhutpurv Naujawan. So I must say that you are Abhutpurv Naujawan. You are evergreen, and if I see you, I am 8 years younger than you, but I find that you are more young, you are younger than me. Not only, almost every spirit, whether it is social life, academic life, spiritual life, political life, and wherever we see, you have vast experience of society. As a judge, whenever you spoke, it was not only inspiring for the students and parents, but we also learned so many things. If I recall recent experience
of Musara competition. Wonderful address you had given. That means you are very frank and clear speaker, I mean. Whatever you feel, that is for the spirit of betterment of students. You never hesitate to say, either personally or publicly. Hence, your views, experience, they all are very crystal clear and they are very inspiring for all of us. So many things are already shared by Misra sir. Just I wish that wherever you will be always connected with the teaching and learning and contributing for the betterment of society. Maharaj Ji, you have been working in this institution before I joined, and till now I have seen that your personality is unique, especially taking signature of teachers for arrangement. If we are on the first floor, many times you call to come downstairs to sign, but you did not leave anyone without signature. So this is a great thing that you contributed, you completed your work the way you liked, but you did. So that is a great thing that you never sulk yourself from the work. You have been very good rapport with almost all of us. As a DPS Degahi family member, your contribution we shall remember. We miss you because your presence generally we used to come first in the school and you were there always to wish us, or even I wished you many times, good morning Maharaj Ji. And you were very happy. I was equally happy that I got opportunity to welcome you. I wish you very healthy, happy and prosperous future. Already you have settled, you are making your grand building, another building again. So let it be completed very soon and you shift over there. So once again I would like to wish all the best in your next endeavor, wherever you will. Be happy and just remember us as we will miss you. Thank you very much. He is a good teacher, but he is also a very good speaker, and that we all witness in all the assemblies, the programs that we witness during the school hours. So once again, I would request anyone of you who would like to express his view, experience, any moments with Daksam or Maharaj Ji, most welcome. V.P. Dwivedi sir. वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणतास्मताम्। आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर रत्नेश सिन्हा जी, श्री उमाकांत महाराज जी, साथ में उपस्थित हमारे सभी शिक्षक साथीगण, हर्ष और विषाद दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब हम किसी चीज को पाते हैं तो हमारा हृदय आह्लादित होता है, और जब हम किसी चीज को खोते हैं तो ठीक उल्टा हो जाता है। ये संसार में दोनों ही चीजें हम सभी के जीवन में आती हैं, और ईश्वर हम सभी को इतनी शक्ति देता है कि हम दोनों ही चीजों का आनंद कहें या अपने जीवन में इतना बढ़िया से उतारते हैं कि दुख को भी हम स्वीकार करते हैं और सुख को भी हम स्वीकार करते हैं। दोनों डॉक्टर रत्नेश सिन्हा, इनका नाम रत्नेश है
और उमाकांत महाराज जी जो बैठे उनका नाम उमाकांत है। पहले मैं आपको दोनों के नाम पढ़ जाऊंगा। रत्नस्य ईश्वरः इति रत्नेशः, उमायाः कान्तः इति उमाकान्तः। जो रत्नों का ईश्वर हो, जो जहाँ रत्नों की संख्या एक न हो। लोग कहते हैं कि एक कोई रत्न पहन लिया तो बड़ा गौरवान्वित होता है। जहाँ रत्नों का जो है समाहार है वो कितना जो है गंभीर है, कितना उसके पास प्रचुरता है, कितना उसके पास संपन्नता है, कितना उसके पास वैभव है, वह वाणी से नहीं कहा जा सकता। लोगों ने अभी व्याख्या किया, वो अकथनीय है। अकथ अलौकिक तीरथ राव को कह सके प्रयाग पढ़ाओ, तुलसीदास जी ने कहा। ऐसे ही हमारे महादेव हैं जिनके आदि और अंत का वर्णन आज तक गुणातीत है। कहा गया है नमामि समीसां निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो ऐसे जो उमाकांत जी हैं हमारे, देखिए अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब में होती हैं, लेकिन जैसे सर्प का क्रोध जो होता है वह उसकी अच्छाई है। सर्प जो है उसका क्रोध, अगर उसमें क्रोध न हो तो वह निर्गुण हो जाएगा। तो उमाकांत की जो अच्छाई है वो उसी रूप में हम लोगों को अच्छी लगती थी, जब वो बुलाते थे, जब वो हमको टोकते थे। आज इनके जाने के बाद हमें कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बुराई हमारी देखने वाला नहीं है। रजिस्टर इतना अच्छे से रखते थे कि एक सेकंड भी एक टीचर जो है अपना मतलब वो किया, मतलब हमें ये आगाह करते थे कि आप 2 सेकंड पहले आइए, तो आप उसको हम दूसरे दृष्टि में अरे 1 सेकंड था ये अंदर कर दिया, नहीं, आप उसको सही दृष्टि से देखिए कि इनकी इच्छा थी कि आप और प्रांत बने। ये बड़े थे हम लोगों से, उम्र में बड़े थे, और उम्र में बड़ा होता है जो पालक होता है। और ऐसे भी स्कूल में 2 ही होते हैं, एक होता है आदेश देने वाला और एक होता है उसको पालन करने वाला। इसलिए इनका पद जो था आदेश पाल था। तो अपने पद का जो इनका गुण था उसका बखूबी इन्होंने अपने जीवन में हो किया। माता जी आप धन्य हैं, आप भगवान आपको चिरायु रखे, आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, संपन्न रहें, अपने को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करें, सन्मार्ग पर चलें। अब दूसरी बात आती है डॉक्टर रत्नेश सिन्हा की। समय है? हाँ तो ठीक है। दूसरी बात डॉक्टर रत्नेश सिन्हा की आती है। डॉक्टर साहब के साथ मैं एक लंबी पारी काम किया। 2-3 वर्ष पहले हमसे विद्यालय खुलने के 5 अगस्त 1998 को विद्यालय डीपीएस निगाही का शायद स्थापना है 25। अच्छा, हमने कहीं 5 अगस्त पढ़ा था इसलिए मैंने 5 का नाम, ठीक है, महीना वही है, अगस्त महीने में 1998 में डीपीएस निगाही की स्थापना हुई, जिसके प्रारंभिक शिक्षक और प्राचार्य जी तो हैं ही, साथ में हमको लगता है प्रियंका मैम यहाँ उपस्थित हैं, तो उन्होंने नाम सही संख्या और जो है तिथि और जो है महीना बताया। और 1 वर्ष बाद डॉक्टर रत्नेश सिन्हा यहाँ आ गए और 2003 में मैं यहाँ आ गया। जिस साल मैं आया उसी साल यह विद्यालय 12वीं तक पूर्ण हुआ, 12वीं पूर्ण हुआ, और उसी साल में इस विद्यालय में हिंदी और संस्कृत शिक्षक के रूप में मैं कार्य करने लगा। तो डॉक्टर साहब से चूंकि मैं हिंदी में था तो इनसे हमारे कार्य क्षेत्र में काफी संबंध थे,
इवन देन तमाम जगह पर साथ में सहभागिता निभाना, कंपेयरिंग इत्यादि का कार्य करना। इतना ही नहीं, इनके साथ में विद्यालय का ओवरऑल क्लीनिनेस इंचार्ज भी रहा और हम लोगों को प्रशस्ति पत्र मिला। डॉक्टर साहब, इनकी विशेषता यह है कि विषम से विषम परिस्थिति में अपने सामंजस्य को, अपने धैर्य को, अपने क्षमा सहनशीलता को कभी ये परित्याग नहीं करते हैं। मनुष्य में यह दोष होता है कि धैर्य उसका जवाब दे देता है, वाणी उसकी जो है अनकंट्रोल हो जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब में ऐसा बात नहीं है। भीतर से चाहे जैसे हो, यह बात न मैं बता सकता हूं न आप बता सकते, ये डॉक्टर साहब ही जाने, लेकिन बाह्य जो स्वरूप है उसकी व्याख्या की नहीं जा सकती है। डॉक्टर साहब विद्वान के साथ साथ एक कुशल व्यवहारिक और समाजसेवी, चिंतनशील, विवेकशील, कर्तव्यपरायण, जितनी बातें हम कहें कोई बात असत्य नहीं ठहरेगी। ये कहा गया है कि अस्ति यद्यप सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। तालाब बहुत होते हैं, तालाब बहुत होते हैं, और तालाब होते हैं तो जल नहीं होता है, और जल होता है तो कमल नहीं होता है, और कमल होता है तो हंस नहीं होता है। ऐसे ये तो तुलसीदास हंस जी के रामचरितमानस के विषय में समीक्षा की गई है कि रामचरितमानस ऐसा मानसरोवर है जिसमें मानस, हंस रूपी मानस जो है विद्वानों की जो है उसमें जब डुबकी लगाते हैं तब वह शोभायमान होता है। ऐसे ही विद्यालय होता है। जब विद्यालय में हंस होते हैं तभी जो है विद्यालय की शोभा होती है। विद्यालय में अगर हंस नहीं है, हंस का मतलब यहाँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ, विद्वान हमारे शिक्षक नहीं होंगे तो विद्यालय जो है उसकी गरिमा और इसका श्रेय कहीं न कहीं, चाहे हम मन से लें चाहे बेमन से लें, वह श्रेय जो है प्राचार्य महोदय को ही जाता है। विद्यालय में अच्छा हो या बुरा हो, सबका श्रेय प्राचार्य महोदय को ही जाता है। क्यों कि नेतृत्व उन्हीं का है। तो सिन्हा जी जैसे व्यक्तित्व का चयन कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि हमारे यहाँ जो नेतृत्व है वो तीक्ष्ण है, कुशाग्र है, होशियार है, प्रबुद्ध है, ज्ञानवान है, क्षमताशील है, अनेकानेक जितने हम कह सकें शब्दों की तो बहुत जो है लंबी कतार है। बहुत लंबी कतार में जाएंगे तो अच्छा नहीं है, लेकिन आज जितने भी हम यहाँ सब बैठे हैं, कहीं न कहीं पैनी परख के परीक्षा एक कहानी आप पढ़े होंगे, उस परीक्षा कहानी का परिणाम है कि हम डॉक्टर साहब जैसे शिक्षक को अपने बीच में पाए और उन्होंने अपनी सेवाएं दिया। कहा गया है कि हंसः श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः हंस बकयोः। हंस भी सफेद होता है और बकुला भी सफेद होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो मनीषियों ने कहा कि नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर विवेके हंसः हंसः बको बकः। जब पानी से दूध को अलग करने की बात आती है तो हंस हंस होता है और बकुला बकुला हो जाता है। तो अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग हंस ही हैं, अपने से अपनी व्याख्या हम
नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे हंसों का जो चयन हुआ वह हम दिल से प्रशंसनीय है। मैं अपने हृदय से प्रशंसा करता हूँ कि हमारे जो चयनकर्ता हैं उनका विवेक बहुत अच्छा है, उनकी जो सुधि बहुत अच्छी है, सोच बहुत अग्रसोची कहते हैं ना, अग्रसोची है। और उस अग्रसोची का परिणाम है कि हम डॉक्टर साहब जैसे शिक्षक हिंदी विभाग में सुशोभित हुए, जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल डीपीएस निगाही के प्रांगण में गौरव बढ़ाया। मैं तो बहुत लंबा का 23 वर्ष 22 वर्ष मुझे इनके साथ काम करते हुए, न केवल डीपीएस निगाही के प्रांगण में इन्होंने इसके फ्लैग को ध्वजा को जो है आरोहण किया, अभी विद्यालय की सीमाओं के बाहर जाकर के भी हम लोगों ने डॉक्टर साहब के साथ काम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उसमें मिश्रा जी आप यहाँ नहीं थे, उस समय हम लोग जो है वहाँ शिवराज सिंह चौहान के सामने जो है अपने रचित स्किट को प्रस्तुत किया, तमाम जजों के सामने, जो जिले के जानी मानी हस्तियां थी उनके सामने, तमाम क्षेत्रों में हम लोगों ने डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जो है, जिसका अब आंकड़ा हमको उसका पूरा वो नहीं याद है कि जो है बायोडाटा में पूरा नहीं रखा हूँ, लेकिन मेरे जो स्मरण क्षेत्र में है, मैं ज़्यादातर लिखित में बहुत कम रखता हूँ, मेरे मस्तिष्क में ही सब बातें रहती हैं। और मेरा जो मस्तिष्क कह रहा है, प्राचार्य जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने बातों को रखा, अपने बच्चों के माध्यम से जो जुडिशरी के जो हेड होते हैं उनके सामने रखा, जिला अधिकारियों के बीच में रखा, एनसीएल हेडक्वार्टर के सीएमडी डायरेक्टर, अधिकांश लोगों के बीच में हम लोगों ने अपने पर्चों को फहराया और हमारे छात्रों ने भली भांति उसका जो है, और उसमें हिंदी विभाग विशेष रूप से रहता था, डॉक्टर साहब का भी योगदान रहता था, और मैं भी उसमें जो है अपनी जितनी भूमिकाएं होती थी मैं पूरा करता था। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं विदाई समारोह में, निश्चित रूप से दुखी हम हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हम लोगों के साथ इतने दिनों तक काम किए और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। हम तो बाह्य बातों को ही विशेष रूप से आपके सामने व्यक्त किए, हमारे शिक्षक तो इतने जो है अनुभवी निकले कि आपके भीतर की भी बातों को व्याख्या कर दिया। आपके जो गुण हैं अंतःकरण की बातों को भी जो है आपके सामने समाज में रखा, और हम आपको बारे में, आप दोनों के बारे में बस यही कल्पना करता हूँ कि देखिए, ये जो घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन सबको जाना पड़ेगा, जाना तो सबको है, लेकिन हम लोगों के कहा गया है कि धैर्य त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले सायांत्रिक तुम वांछितम न। विद्वानों ने कहा कि जब विपत्ति आए तो हमें अपने धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता है और समुद्र में है, नदी में है, तालाब में किसी कारण से फंस गया, तो प्रयास क्या, वो जानता नहीं है कि हम तैर पाएंगे कि नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है कि हम तैर कर किनारे हो जाएं। तो मेरा आप दोनों को यही संदेश है कि देखिए, जीवन में धैर्य हमेशा रखना चाहिए। और आप लोगों के लिए कालिदास के एक श्लोक में आप दोनों के लिए कह रहा हूं कि उसमें कालिदास ने लिखा कि जो है, जैसे कि चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो शीतल होता है और संसार को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वह डूब जाता है तो केवल उसका संस्मरण अच्छा लगता है।
आप दोनों के जो कर्तव्य पथ यहाँ रहा है, कर्तव्य जो रहा, कर्तव्य में ही सारे गुण समाहित हो गए। जो कर्तव्य आपका यहाँ रहा है वह अब हम लोगों को संस्मरण में रहेगा और हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और मैं आपके संदर्भ में यही कहूँगा कि आपका मार्ग जो है सुगम हो, आपकी दिशाएं चारों तरफ से हरा भरा हो जाए। आप जिधर से निकलें, अगर हवा उड़ रही हो उसमें धूल हो तो वो धूल जो है हल्की सी ओस पड़ जाए, भगवान की कृपा हो जाए, वो शुष्क हो जाए, वो जो है द्रवित हो जाए और वो जो है आपकी आंखों में न पड़े। आपको हम विद्यालय परिवार की तरफ से एक माने छोटा सा एक सदस्य के रूप में आप सभी को मैं यही प्रेरणा दूंगा कि सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हमेशा आपका कल्याण हो, हमेशा आप चारों दिशाएं आपके लिए मंगल हो और आपको जो है सब तरफ जो है केवल शुद्ध वातावरण मिले और अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहें। आज मोबाइल का युग है। मोबाइल ऐसा हो गया है कि अगर भले ही आप दिल्ली में रहें, गुवाहाटी में रहें, इंडिया के किसी कोने में रहें, विदेश में रहें, अगर जो है दिल की दूरी न बनी रहे जिससे कि हम लोग एक दूसरे को अवलोकन करते रहें। और उमाकांत जी तो आज ही हमको सुबह में वॉकिंग कर रहा था तो स्कूटी से मिल गए और स्कूटी इन्होंने रोका और कहा नहीं सब बैठिए और ये ले आकर के हमको कुछ दूर तक छोड़ा दे दो। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए यही कहूँगा कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निरोध्यत। आप बैठिए नहीं, अपने मार्ग को रोकिए नहीं, उठिए और जागृत होइए और गुणों को, श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त करें। अर्थात अभी आप में बहुत कुछ है। नेवर लुक बिहाइंड वाइज व्हेन यू आर ऑन द वे, टाइम इनफ फॉर दैट वाइज ऑन सम फ्यूचर डे। मैंने एक कविता कहीं पढ़ा था तो कहने का मतलब है कि भविष्य के बहुत से दिन हैं, अभी बहुत काम है, काम तो करते रहिए, काम तो करना ही है। और हम दुखी जरूर हैं लेकिन सुखी भी इसलिए हैं कि आप दोनों हर ढंग से सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक और जो ईश्वर को देना चाहिए सब आपको प्रदत्त हैं। जैसा कि सभी हमारे गुरु शिक्षकों ने कहा, तो कोई दुख की बात नहीं है। दुख केवल ये है कि हम आप विदा हो रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष जय हिंद, जय भारत। आपने बिल्कुल सही कहा। रत्नेश सर इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट इज अ गुड रीडर आल्सो। और अगर इतने ही अच्छे रीडर अपने स्कूल में और कोई हैं तो प्रिंसिपल सर। तो मुझे कभी कभी लगता है इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है कि कौन ज्यादा बुक्स पढ़ेगा। रत्नेश सर को भी आप स्टाफ रूम में देखोगे तो सही कहा कि आप एक तरह से मैं उनको बुक पढ़ते हुए देखेंगे। और अगर आप प्रिंसिपल चैम्बर में भी जाओगे तो प्रिंसिपल सर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पढ़ते मिलेंगे। तो ये दोनों में कंपटीशन ऐसे चलता रहे, मैं तो यही कहूँगा। और फिर से आप में से अगर कोई अपने विचार रखना चाहता है तो फिर यस वेलकम जसवीर मैम। Good morning everybody. Most respected Principal Sir, respected Dr. Ratnesh Sinha Sir, Umakant ji and lovely colleagues. It's another moment to bid farewell to N.P. Mishra sir had said, two pillars of the school in two different fields. So a lot has been said about both of them, so I'm not going to repeat whatever fond memories I had about Dr. Ratnesh Sinha sir and Umakant ji. I would just like to take a few minutes to share that. My first association with Ratnesh Sinha sir was when we were given responsibility of comparing in school together in the school programs.
And in the stadium, when the first time it was decided that all the 3 schools would take up the Independence Day and Republic Day program together. So that was the first time, I think in 2009, when I was, after Seema Shukla ma'am left, that time I started this comparing work at the stadium and with Ratnesh Sinha sir. And the first time when sir had given us duty, so I was very nervous how to handle the stage, the stadium, and I totally relied on Ratnesh Sinha sir when he would just say one line, "Madam, ho jayega." That's all. So these 2 words, were like, there is no need to worry. No matter wherever there was something where you had to rely on someone in such programs. So Ratnesh Sinha sir was always there with a smile. "Don't worry, madam, ho jayega." This ho jayega, sir, is something, which gives you that extra boost that yes, your program will not fail. And the other thing which I think Ratnesh Sinha sir had said in Meenakshi ma'am's farewell, which I still remember, and he said that he's going to also face the same situation, that we are all bogies of a train. Sir, do you remember this? You had said this, that we are all compartments of a railway train, and one day we've all started in our journey, and the day superannuation is going to come, that day we are going to reach one of our destinations of life. So this is the time when Ratnesh Sinha sir has also reached one, and it's a matter of pride for a person to reach this, what do you say, point of life where you are hale and hearty, and you are leaving such fond memories behind. When you have your colleagues running short of time talking about you in such moments, this itself is something which tells about your personality. You were an epitome of patience. You were, as said by all other colleagues, you were such an avid reader. You were such a great speaker, and it was always so encouraging listening to you. And many a times I've also told Ratnesh Sinha sir that whenever, now right from the time Principal sir has started making YouTube videos, there was nothing which we missed, whether we are attending the programs of any particular classes or not, because everything we get on YouTube. So prior to that, I would always see to it that when Ratnesh Sinha sir would come on stage to speak, so at least we should go and listen to what he was full of knowledge, and that has all come from the books which he read. You would always find him reading, sitting in one corner, because he would sit on the first seat of the staff room, and the moment, as soon as the door would open, you would find Ratnesh Sinha sir either listening to something on the YouTube or reading books. And when he was the timetable in charge of the school, the arrangement in charge of the school, I remember with such patience he would handle those duties also. Whenever we would approach him and say that, "Sir, I have so and so work in the last period or maybe this period, so could you please swipe the periods?" And he would just do it so easily without any hassle. And then in case we wanted to leave a bit early, or we would tell him to manage so and so class, he would say, "Madam, koi baat nahi, aap jaiye, main dekh lunga." So these are the lines, Ratnesh sir, which we would be missing you as a personality. And if in case I wanted to give a title to sir, like we give title to students when we bid farewell to them, I would give him Mr. Cool title, because such a cool personality. If at par with Principal sir, as sir said just now, it is once again among the staff members, it is Ratnesh Sinha sir whom we can proudly give this title of Mr. Cool. So all the best to you, sir, in wherever you go, and your future now is with your grandchildren. And Umar Khan ji has also done his duty
sincerely in the school, as said by, I think, Mukesh sir, in spite of his ill health many a times, but right from the time when he was supposed to take the charge of the arrangement registers or the attendance registers, it was his duty which he did, whether liked by the staff members or not, as told by Dwivedi sir also. Maybe if we take the other way around, it was a push for us to reach the school in time so that we don't fall in that position of going and signing the registers inside the principal chamber. So to teach us to reach school in time. So Umakant ji, we wish you all the best for your future and wish you good health also. Thank you. Thank you, sir. To retirees, अब मैं नरेंद्र तिवारी सर से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो कुछ इस मौके पर कुछ संगीतमय सुनाएं। परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय, हमारे अग्रज एवं अनुरक्त शिक्षक बंधु एवं भगिनी, आज लाइब्रेरी कक्ष में डॉक्टर रत्नेश कुमार सिन्हा सर और उमाकांत महाराज जी का सेवा काल पूर्ण होने के पश्चात विदाई समारोह होने जा रहा है, प्रारंभ है। इस अवसर पर हम कुछ कहने और बोलने जा रहे हैं। श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धन धन्वंतरि विश्वा, ये समुद्र से निकले 14 रत्न हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही से आज दो रत्नों की विदाई हो रही है, डॉक्टर रत्नेश सिन्हा सर और उमाकांत जी। तो इन लोगों के विदाई के अवसर पे हम कुछ चौपाई और एक छोटा सा विदाई प्रस्तुत कर रहे हैं। बंदर पद परुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदर पद परुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मलहरी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग आवई जासु। उबरन विमल विरोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जय खानिक। गुरुपद पंकज गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग
कमल विवेक विलोचन परनौराम चरित भवमोचन यथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सन बन भूतल घोरी निधान आप जैसा बड़पन नहीं देखता आप जैसा बड़पन नहीं देखता आप जैसा सरल मन नहीं देखता आप जैसा सरल मन नहीं देखता आप जैसा बड़पन नहीं देखता आपको हम विदा आज कैसे करें आपको हम विदा आज कैसे करें आप जैसा रतन धन नहीं देखता जोड़ हर ईंट को ये बनाया भवन सारी सुविधा जुटाई बिना कटु वचन प्रेम स्नेह की आप सुरभित सुबह आपके इस समर्पण को सत सत नमन आपके इस समर्पण को सत सत नमन आपके बिन ये सुना रहेगा चमन याद सी भर गई अश्रु भीगे नयन आप स्वस्थ और निरोगी रहे उम्र भर आपके नेतृत्व को मेरा सत सत नमन आपके इस समर्पण को सत सत नमन सक्रिय जीवन का अंत नहीं बस शिक्षक का ऐसा जीवन जो करना चाहे खूब करे हो स्वास्थ्य आपका तन और मन आपके साथ बीता जो सुंदर समय आपके साथ बीता जो सुंदर समय याद हर पल रहेगा आज देते वचन याद हर पल रहेगा आज देते वचन सिन्हा सर के लिए एक चीज़ को अपना है सिन्हा सर जब तक सेवा में थे बच्चों को पढ़ाए कुछ किताबें भी लिखे विद्यालय में भी कुछ किताब पढ़ाई गई उनकी अभी उनके पास पूरा समय है अधिक से अधिक कुछ अभी अधूरी रचनाएं उनकी हैं जो अभी नहीं पूरी हो पाई हैं उसको पूरा करें और बहुत सारी किताबें लिखें और अभी हाल में डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है ऐसे पुरस्कार हमारे डॉक्टर रत्नेश कुमार सिन्हा सर जी हासिल करें हम सभी उम्मीद करते हैं और उमाकांत जी के लिए उमाकांत जी के बारे में तो बहुत अच्छा बोला गया और बहुत सक्रिय भी हैं इनका भी सब काम पूरा हो गया है अभी बीच में हमारी इनकी एक मुलाकात हुई थी तो ये हमसे सलाह लिए कि तिवारी जी हम सभी अपने सहकर्मियों को दीर्घाहार कराना चाहते हैं बोले तो बहुत अच्छी बात है तो तैयारी उनके द्वारा सब पूरी कर ली गई है बस तिथि अघोषित है इसकी सूचना आप लोग को शीघ्र ही दे दी जाएगी बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ जय दिव्यस जय मेराही धन्यवाद मैं उमाकांत महाराज जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी विद्यालय यात्रा अपनी अनुभव यात्रा के बारे में 2 शब्द कहें
और एवं ऑफिस स्टाफ और सभी भाइयों को, अपने सहकर्मियों को एवं हमारे मार्गदर्शन देने वाले हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भीमसर सर है और शुरू से ही जो है हमें दिशा निर्देश देते आए हैं। इसके लिए मैं सादर हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आभारी हूँ। मैं 25 अगस्त 1998 को जब मैंने ज्वाइन किया था तो सिर्फ 5 या 6 के स्टाफ थी, जिसमें उपस्थिति में अभी प्रियंका राज और भारती मैडम है, लोग यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, एवं बीजू सर और बाकी जो है मैं और एक अनिता थी। 6 वर्ष बाद, 6 महीने बाद, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, साहब का आगमन जैसे हनुमान जी को श्री राम जी का मुलाकात हो गई थी वन विभाग में, उसी प्रकार जो है ये आए। तो मैंने पूछा कि आप साहब कौन हैं, क्या काम है? कहें कि नहीं मैं प्रिंसिपल हूँ। तो मैंने आज और उनको जो है जहाँ पर अभी मिश्रा सर बैठे हैं वहाँ पर बैठे। जब हमारा हृदय से स्वागत देखे तो हमारे एक सीनियर टीचर थे, माननीय श्री आर्यन सिंह सर, वही कलम पढ़कर साहब की सेवा में रहते। पर मैं तो भाई क्यों था, उनकी दायरा जो होती है एक सीमित होती है, और आदेशपाल जिनके उन्होंने कहा अभी तो हमारे विद्वान टीचर थे कि महाराज जी आदेशपाल थे। आदेशपाल तो मैं हूं, लेकिन मैं अपने अधिकारियों को सुरक्षित करने का प्रहरी भी हूं, मैं चौकीदार भी हूं। और गर्म पानी की व्यवस्था की जरूरत थी तो उन्होंने हमारे सीएम साहब थे, कपूर साहब, तुरंत हम जाने लगे तो सब लोग बैठा दिए। खैर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। साहब से टाइम में थे, जितना बन सका मैं हृदय से, ऐसा नहीं कि बाहर उठूँगी, लोग जागी रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी थी जैसी। अभी भी मैं कहता हूँ अपने विद्यालय के परिवारों को कि जो जिस रूप में चश्मा से देखेंगे उस रूप से ऊंचे दिखाई देगा। और मैं इतना नहीं, हृदय से अभिनंदन करके अपने भोलेनाथ की कसम और अपने पूरे परिवार की कसम, पूरे हमारे विचार से जिले में ये पहला प्रिंसिपल होंगे जो सबका भला चाहते हैं। लेकिन अनजाने में चश्मा पहन के लोग, चश्मा पहना कर लोग कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती है, चाहे हमसे हो, चाहे आपसे हो, चाहे किससे हो। लेकिन उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसको गांठ में नहीं बांधना चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जाते जाते अपनी विदाई समारोह के से शब्दों से कह रहा हूँ कि यदि विद्यालय को बचाना है तो खुला मुट्ठी मत रखे, बंद मुट्ठी। इसका विकास 1998 से लेकर 2025 तक जो हुआ है उसकी रफ्तार को हम आप धीमी कर दिए, जिसका कोई मनन चिंतन कीजिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इसलिए भाई को मैं अभी भी कहता हूँ कि अन्यथा न लिखें और अपनी विद्यालय की बातों को चौराहे पर, मित्रों में, ऐसे जगह न प्रयास कीजिए जिससे हम हैं तो विद्यालय है तो नहीं, विद्यालय है तो हम, विद्यालय है तो हम, हमारी पहचान क्या है विद्यालय से। और सुबह ही मैं साहब को कहा कि सर चरण की आशीर्वाद एक गठरी होती है जो सबका चरण का आशीर्वाद से आज मैं कहाँ था और आज दिल खोल के कहा हूँ कि साहब के चरण आशीर्वाद, आप उनके चरण का आशीर्वाद, आज कहाँ हूँ ये आप मानिएगा ना। और इस बात की हम नहीं है, इस बात की घमंड नहीं है। घमंड सिर्फ इस बात की है कि जाते समय भी प्रिंसिपल सर कहते थे कि हम जा रहे हैं बाहर, बदमाशी मत करना, दूसरा चार्ज में शिकायत ना है। क्यों कहते थे? वह दिल से मानते थे और दिल से कहते थे। आज भी गुस्साते हैं ना किसी पर भी, चाहे टीचर हो चाहे हम हो, तो उन पर झलक आती है हंसी। वह 5 मिनट 10 मिनट के लिए तिलक होगा। एक बार मैं बहुत ही नाराज हो गया साहब से,
तो मैं साहब के मैडम से शिकायत किया कि साहब हमको बहुत डांट दी, बोलते 5 मिनट की, ज़्यादा नहीं 10 मिनट की, तुम सामने आ जाओ फिर मिलो, फिर वही बात। और मैं पाया मैं सबक खाता हूँ, झूठ में बोल रहा हूँ, एक रत्ती झूठ में। जितने भी टीचर थे अपने अपने वक्तव्य कहे, सर के साथ काम किया, सर के साथ काम किया और लोगों के साथ किया। काम में उतार चढ़ाव होता है, हो सकता है हमारी में प्रकृति का गिफ्ट मिला हो जो हम किसी की बात को न बर्दाश्त करें। आज पता नहीं क्या है कि मैं 8 नौकरी छोड़ के 9वां नौकरी में सर के सर, और सर के गाइडलाइन से आज मेरी नौकरी की लाश मिलाई है, नहीं तो कब की नौकरी मेरी चली जाती। देखिए क्या आज 9 में थी ना, इसीलिए आराम से किया। आप लोग चाहे जिस रूप में यहाँ से, मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ सत्य सत्य। और अभी भी मैं कहता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि साहब निरोग रहें, भगवान खूब इनकी उन्नति दे। और मैं तो कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आप लोगों सामने कहता हूँ, इनका यदि ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, माता रानी की कृपा से 2 साल यदि बढ़ जाता है तो बेचारा और कहीं बढ़ जाएगा। इसकी मैं इस ग्रुप को मैं कहता हूँ, लेकिन लोग पढ़ने देंगे। यदि लोग पढ़ने देंगे और 2 साल बढ़ गया तो विद्यालय का रिथुआ बदल जाएगी। अभी देखिए, पहले विद्यालय में पकड़ के लाते थे लोग कि एडमिशन कराओ, पकड़ते थे लोग, जिसमें जेपी सिंह थे, एक तरफ थे, और सीएम जेपी सिंह साहब थे। मैं उस दिन की बात करता, 213 बच्चे थे, उसको पकड़ के आई महिला थी डीएवी के प्रिंसिपल, जो महंती साहब, उनके में विवाद हो गया, नहीं चल रहा, बोर्ड कुछ और लगा था, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा, इनकी जैसा उनको मिलने वाले साहब डीपीएस से आ गया, रात भर में बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो कहा है कि पुरुष से भागम देव अपने का, किसी भाग्य को कोई नहीं जानता है, लेकिन कर्म अपना अच्छा करना चाहिए। इसलिए मैं यही कामना करता हूँ कि यदि मेरी वर्किंग पीरियड में, यदि मेरी कार्य क्षेत्र में कहीं भी यदि त्रुटि हो, या कोई नाखुश हमसे कोई भी स्टाफ हो, चाहे वह ऑफिस का हो चाहे यहाँ का हो, तो इस सभा में मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, और हमें क्षमा करने का जो है अधिकार है, तो आप हमें क्षमा कर दें और अपनी हमें मुक्त कर दें। और कभी भी यदि जरूरत हो तो मैं अपनी बात की बात नहीं करता हूँ, बात की बात नहीं करता हूँ, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं कहना राजनीति से भी जुड़ा था, नौकरी किया, छोड़ दिया, समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ, और साहब के चरण कृपा से अच्छे अच्छे लोगों की, हमारे थापर साहब का प्यून है, उससे भी आगे समझ, ताकि 2% साहब को अनुभव हुआ होगा। हाँ, कहीं स्वास्थ्य में था, हमारी बच्ची जो है तलाकशुदा में, हम उस बात को झेल रहा हूँ, मैंने इनसे विनता किया था, सीएमडी से कहा, डायरेक्टर से कहा, इनका बेबस थे, नहीं कर सके, मुश्किल दुख नहीं है। आप इस बात को जानिए कि किसी को मुंह से कहने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना अपनी जवान को लगाना पड़ता है, वो आप लोगों का अनुभव हुआ। इसलिए मैं अपनी वाणी को क्षमा बार बार चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा बीपी और हार्ट का शिकार हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे साहब सबको मिले, और कई क्षेत्रों में ऐसे लोग मिले जो गाइडलाइन दे सके। और हम तो कभी कभी इनको ये भी कहता हूँ कि लगता है संत बन जाएंगे क्या साहब, पूरी पढ़ते रहते हैं किताब और बुरा माइन, और बिल्कुल अच्छी बने रहते हैं, तो कहते नहीं गृहस्थ सबसे हमले है। लेकिन जो आपकी स्वभाव है, जो आध्यात्मिकता है, जो झलक रहा है, वह एक जो है नौकरी पेशा में वाले लोगों को नहीं झलक रहा है, आपका कुछ अलग झलकता है। आज का दिन, मैं थोड़ी सी और सुना, आज का दिन मजबूत गदगद छा रहा, आज का दिन मजबूत गदगद छा रहा, बन गए बराती
चांद सा दुल्हन आ रहा, खो रहा और किसी को और कोई पा रहा, खो रहा और किसी को और कोई पा रहा, और कोई और किसी को जान रहा। तो हे मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर के रूप में आदि शक्ति महिला, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आप लोग ऐसे शक्तिमान हैं कि हर चीज को धराशायी कर सकते हैं, बशर्ते पुरुष हो चाहे महिला हो, स्टाफ हो चाहे मैडम हो, मुख्य की तरफ बंद रहना चाहिए। मैं आपका चपरासी हूँ, लेकिन उम्र में अधिक हूँ, लेकिन इतना सीख दे रहा हूँ कि यदि आप लोग बने हैं तो ये विद्यालय बहुत दूर तक जाएगा और बहुत नाम होगा। जैसे पोस्टर में देखता नहीं लगाया है, कोई आपका जज बन गया, कोई बड़ा अफसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई ये, तो लोग कहते हैं तो हमको गर्व होता है। अब बाहर में हम लोग क्या हूँ, मैं DPS का हूँ तो चौंक जाता है, नहीं आप DPS में है ना, तो कहते हैं ब्रांडेड स्कूल है, बहुत अच्छा है। कम से कम बताइए 60 को 70 को जगह है, 400 500 700 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये आपकी इसमें कमाई है, पैसे की कमाई नहीं, मेहनत की जो छाप छोड़े उसकी कमाई है। इसलिए सर मेरी बातों से आप लोग थक गए होंगे सुनते सुनते, मैं क्षमा चाहता हूँ और समय का अभाव भी है, इसलिए बार बार आपका अभिनंदन है, बार बार आपसे प्रार्थना है कि आप जैसे देवलोक आदिशक्ति और हमारे जो है ऐसे जीवन में लोगों को गाइड देते रहें, ताकि जो है हर जगह उन्नत हो। अच्छा कम लोग होते हैं, बुरे ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन अच्छे जब बिखर जाते हैं तो बुरे भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जय हिंद। और मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि आपसे जो भी त्रुटियां हुई हैं वो सभी शिक्षकों ने माफ कर दी है। वो आप मन में मत रखिए कुछ भी, ऐसा किसी के मन में कुछ भी नहीं है आपके प्रति। अब मैं आदरणीय रत्नेश सर से निवेदन करूँगा कि वो अपने विद्यालय परिवार की यात्रा के बारे में साझा करें। धन्यवाद मुकेश सर, आदरणीय प्राचार्य महोदय, और अब मेरे पूर्व विद्वान सहकर्मियों, शिक्षक शिक्षिकाएं और उमाकांत जी, हमने तो आज पहली बार शायद उमाकांत जी मैंने कहा नहीं, मैं हमेशा इन्हें महाराज ही कहा करता था। महाराज कहने में एक मुझे आंतरिक सुख का अनुभव होता था। बहुत सारी बातें कही गई, मुझे भी लगा कि इतने सारे गुण मेरे में हैं, ये मुझको खुद पता नहीं था। इसलिए मुझे यह बात याद आई कि मेरे एक मित्र ने कहा था कि जितना तुम अपने बारे में नहीं जानते हो उतना तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे बारे में जानते हैं, और यह अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि समय समय पर आपके बारे में आपको खुद पता चलता रहता है और आप उसके अनुसार अपना आचरण करके जीवन में कुछ तरक्की कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इस विद्यालय में आने की का जो संस्मरण है वो मैं थोड़ा सुनाऊंगा, और आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा समय मैं लेता नहीं हूँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और तो हुआ यह था कि मेरे एक मित्र ने मुझको फोन किया स्कूल में, उस समय फोन होता नहीं था, विद्यालय में फोन होता था, तो विद्यालय में फोन किया कि ऐसा है कि देखो DPS निगाही कहीं से कोई एक रोजगार समाचार में एक हिंदी का पद निकला है, तुम देखो उसमें, अगर चाहो तो तुम उसमें अप्लाई करो। तो मैं रोजगार समाचार खरीद कर लाया, उसमें था, मैंने उसको फॉर्म भरा, लेकिन अचानक एक दिक्कत यह आ गई कि उसमें लिखा हुआ था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 100 रुपये का ड्राफ्ट चाहिए, और जहां मैं था वहां पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वहां था ही नहीं। मैंने पता किया, पता चला कि समस्तीपुर यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है, वहाँ है, या नहीं तो 42 किलोमीटर मुजफ्फरपुर में
है, तो हमने सोचा कि अब हो गया, अब नहीं होगा तो हम क्यों अप्लाई करेंगे, यहाँ हैं। और नवोदय विद्यालय में भी मैंने अप्लाई कर दिया था, तो एक जगह कर ही दिया है तो जगह जगह करने की जरूरत क्या है। यही सब सोच करके मैंने मन से विचार निकाल दिया कि अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हम खोलने जाएंगे तब तक समय ही निकल जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ समय सीमा भी थी। तो उसी शाम मैं टहलते हुए कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस है, वहां मैं शाम में टहल रहा था, तो 2-4 लड़कियां उधर से गपशप करते हुए आ रही थी, और वे लड़कियां मेरी स्टूडेंट रही थी। तो उन लोगों ने पैर छू करके प्रणाम किया, और मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग अभी कहाँ हो, तो उसने कहा सर अभी हम यहीं उमा पांडे कॉलेज में हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो एक लड़की जो कि हिंदी में कुछ कविताएं वगैरह लिखा करती थी, तो उससे मैंने कहा कि तुम कहाँ रहती हो, तो सर मैं यहीं कॉलोनी में ही रहती हूँ। तो क्या मैंने पूछा तुम्हारे पापा कृषि विश्वविद्यालय में है, तो नहीं सर कृषि विश्वविद्यालय में नहीं, मेरे पापा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए क्या संयोग होता है, जो ऊपर जो जिसको कहते हैं ना, ये कभी कहते हैं कि जो कुछ लिखा होता है ना वही होता है। उस लड़के ने कहा कि मेरे पापा यूनियन बैंक में है, तो मैंने कहा यहाँ उनको क्वार्टर मिला हुआ है। तो हमने कहा कहाँ है, तो समस्तीपुर में है। हमने कहा अरे तो मुझको एक काम था यूनियन बैंक से, तो सर आइए ना, मेरे पापा 8 साढ़े 8 तक लौट के आ जाते हैं, आप सब 9 बजे तक आइए। मैं 9 बजे तक वहाँ पहुँचा, मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने कहा ठीक है सर, कल मैं ड्राफ्ट लेता हुआ आऊँगा। और दूसरे दिन ड्राफ्ट लेकर आए। मैंने उनसे पूछा कि कुछ पता चला कैसी जगह, ये निगाही कहीं नक्शे पर भी दिख नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन लगता है कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, निगाही प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। हमने कहा ठीक है, तो हो गया, मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ से जो इंटरव्यू के लिए लेटर मेरे पास आया, वो टेलीग्राम आया, उसमें टेलीग्राम चलता है, और टेलीग्राम आया तो उसमें टेलीग्राम लिखा हुआ था कहाँ से भेजा गया, तो वो शक्ति नगर से भेजा गया था, शक्ति नगर पोस्ट ऑफिस से। तो एक जगह का मुझे पता चला कि शक्ति नगर से ढूंढा जा सकता है, तो मैंने नक्शा खोला, नक्शे में मैंने देखा शक्ति नगर मिल गया। तो देखा कि ये मुगल सराय से पश्चिम की ओर है, तो हमने कहा मुगल सराय तक जाने के बाद कुछ न कुछ पता चल जाएगा। मैं समस्तीपुर से आया, पटना जंक्शन बस से, और 10:30 पौने 11 की ट्रेन थी, उसमें रिस्ट्रिक्शन था, 350 किलोमीटर के पहले टिकट नहीं मिलता था। तो शाहजहां सुल्तानपुर का टिकट मुझको लेना पड़ा मुगल सराय उतरने के लिए। बनारस होते गाड़ी जाती थी, बनारस होते सुल्तानपुर होते हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस नाम है उस ट्रेन का, सुपर फास्ट। तो मैंने एक आदमी से कहा कि इसमें तो बड़ी भीड़ है, जनरल बोगी में, अरे हो जाता है, बैठ जाना, 2 टायर में बैठ जाना, टीटी को 20 रुपये दे देना, और वो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मुगल सराय तक जाना ही है। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं घुसा, टीटी गेट पर खड़ा था, मैंने कहा कि मुगल सराय जाना है, और 20 रुपया निकाल के उसको दिया, चुपचाप से लेकर रख लिया, कहा फला सीट पर आप जाकर बैठ जाओ। आ गए। यहाँ मैं जैसे ही मुगल सराय में उतरा कि 2 टीटियों ने मुझे घेर लिया। आप टिकट दिखाइए, दिखा दिया टिकट। बोले आप जनरल बोगी का टिकट है। हमने कहा सुल्तानपुर तक का टिकट है। बोले कहीं का है तो जनरल बोगी का टिकट है। फाइन निकालिए, आप रिजर्वेशन बोगी से उतरे हैं। हमने कहा कि अब तो कोई उपाय नहीं, अब तो फाइन देना पड़ेगा। इधर उधर देख के वो टीटी नजर नहीं आया जिसको मैंने 20 रुपए दिए। तो मैंने कहा कि भाई अब देखिए, अब हम आ गए हैं, हम क्या करें। लेकिन मैंने एक टीटी को मैंने एक टीटी से कह दिया, मैंने नहीं कहा कि मैंने उसको पैसे दिए। मैंने कहा कि एक टीटी से मैंने बातचीत कर ली थी। बोला वो सब कुछ नहीं, आप फाइन निकालिए। अपना रसीद बुक को निकाला। तब तक मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ स्पर्श मैंने महसूस किया, तो मुड़ कर देखा तो वही टीटी था। उसने कहा जाइए निकलिए। अरे इसका मतलब है कि उसने वो उन लोगों का बना हुआ रहता है। अब हम वहां से गए तो पूछे कैसे कि अब शक्ति नगर कैसे जाए, तो
तो लास्ट में जहाँ पर कि टिकट कलेक्टर होते हैं, जो कलेक्ट करते हैं टिकट, वहाँ मैंने टिकट देते हुए कहा कि शक्ति नगर कैसे जाया जा सकता है। तो बोला शक्ति नगर जाने के लिए तो भाई आपको चुनार जाना पड़ेगा, ट्रेन से अगर जाना है तो चुनार जाना पड़ेगा। तो दूसरा आदमी जो बैठा था बड़ा, अरे यहाँ से बड़ा एकदम अंदाज में बोला, अरे भाई यहाँ से बड़ा चलेगा, वहाँ से हजारों बसें जाती हैं, हजारों बसें जाती हैं। ये उसके मुंह से निकले, यहाँ से पड़ाव चले जाओ, वहाँ से हजारों बसें जाती है शक्ति नगर में। तो मैंने कहा पड़ाव कहाँ है? मैं मोगलसराय स्टेशन से बाहर निकला, एक रिक्शा जो 3 पहिए वाला रिक्शा, आदमी खींचने वाला रिक्शा, उसको मैंने कहा पड़ाव चलोगे? तो वो समझा नहीं या नहीं समझा, कहाँ साथ चलेंगे। तो लेकर चला, वो क्या किया कि दाहिने साइड में मोगलसराय बस का पड़ाव था, वहां ले जाकर खड़ा कर दिया दाहिने साइड में, मतलब मुश्किल। तो हमने जब वहां कहा कि आ गया पड़ाव, तो मैंने कहा कि अरे तुमको बोलना चाहिए था कि बगल में तुम्हें पैदल चला आता, तुम रिक्शा लेकर। तो साहब हमारे तो यही व्यवसाय है, तो हम उसको 5 रुपया निकाल के दिए। हमको बोले असल पड़ाव कहाँ है जहाँ उसको जाना है। उसने कहा उसके लिए आपको ये ट्रैकर वगैरह करना पड़ेगा। इससे देखिए जो बनारस की तरफ गाड़ी जाती है वो पड़ाव होके जाती है, तो 5 रुपया उसका, 5 रुपया उसकी, उसको भी मैंने दिया 5 रुपया। पड़ाव आया, पड़ाव में बस के बारे में पूछा तो कहा कि अरे बस की चिंता छोड़िए, देखिए प्रेस वाली बहुत सारी गाड़ियाँ जाती है, ये आपको शक्तिनगर पहुँचा देगी। एक प्रेस की गाड़ी को मैंने दिया। फिर कहा शक्तिनगर में कोई ऐसा होटल वगैरह नहीं है जहाँ आप रुक सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए अनपुरा में रुक जाइए, यहाँ आपको होटल मिल जाएगा और यहीं से आप दूसरे दिन चले जाइए। तो वही मैंने किया और इतना कुछ करने के बाद सुखद अनुभव यह रहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी मैं आपके बीच में, और मुझे यहाँ सबसे पहले प्राचार्य महोदय से व्यक्तिगत रूप से सहयोग मिला। यहाँ जब मैं अकेला था तो पानी वगैरह की व्यवस्था है, सर ने कहा कि यहाँ का पानी बड़ा ख़राब है, अगर ऐसे पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और सही में मैं बीमार पड़ गया। एक दिन रात में बहुत प्यास लगी और उठ करके नल से ही पानी मैंने जल्दी पी लिया। दूसरे दिन से सर्दी खांसी हो गई, परेशान हो गया। तो सर ने मेरी मदद की, अपना वो वाटर बोतल जो होता है बड़ा वाला 5 लीटर वाला, यहीं से ले जाइए, या डॉक्टर साहब थे वहाँ से ले सकते थे। इस तरह से मैंने अपने जीवन की यात्रा, यहाँ की यात्रा मैंने शुरू की। और अब तक जो भी मेरे सहकर्मी रहे, सबसे मेरा बड़ा अच्छा लगाव रहा। मैंने भरसक किसी को कष्ट पहुँचाने की बात तो दूर रही, दिल में दुखाने की मनसा मैंने नहीं रखा। और मैं मानकर चलता हूँ कि जीवन को अगर बेहतर ढंग से जीना है, खुशी खुशी जीना है, तो हमें अपने व्यवहार में शालीनता और सहचरता लानी चाहिए। हम समझे कि हम भी हैं तो ये भी हैं, केवल अपने को हम कुछ ना समझे, क्योंकि सबका जीवन होता है, जीवन चलता रहता है। अभी यही कारण है कि मैं बताऊं कि मैंने अपने जीवन में सैड सॉन्ग को कभी महत्व नहीं दिया। मैं सुनता हूँ करुण रस, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो करुण रस भी एक रस है, लेकिन बावजूद इसके मैंने सैड सॉन्ग को कभी महत्व नहीं दिया, मुझको अच्छा कभी नहीं लगा। इतना ही नहीं, पार्टी वगैरह में भी मैं अभी आपके सामने कुछ खोल दूँ तो मैं थोड़ा ड्रिंक भी करता हूँ, तो वैसे समय में भी मैंने सैड सॉन्ग नहीं सुने, मुझको अच्छा नहीं लगता। जीवन को हमेशा जीवन के खुशी वाले पहलू को हमें देखना चाहिए। दुख तो बहुत है, दुख से ही तो हमारा इस दुनिया में आना हुआ। दुख तो मूल आधार है। इसलिए जिन लोगों ने दुनिया को इस तरह से सहर्ष जिया बिना किसी लाग लपेट के, उन लोगों ने अपने को दीवाना कहा। और आज मैं इस अवसर पर एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिससे मेरे जज्बात, मेरी भावनाएं आपको पता चल सकती है। ये कविता कक्षा 8 में चलती है, मेरे ख्याल से इसको 8 में नहीं चलनी चाहिए। ये कविता क्लास
8 की नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ देखा है एक बार अंग्रेजी की एक किताब में शायद कक्षा 7 में जॉन कीट्स की कविता को मैंने देखा, लॉ बेला डैम सेंस मर्सी। मुझको अच्छा नहीं लगा। ये कविता क्लास 7 के लिए नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन में इसको पढ़ा था। जब मैं ग्रेजुएशन में मैं पढ़ रहा था तो मेरी किताब चलती थी द गोल्डन ट्रेजरी। मैंने सर को दिया भी था। द गोल्डन ट्रेजरी में जॉन कीट्स की कई कविताएं थी। तो जॉन कीट्स की वो कविता है, ए गर्ल विदाउट मर्सी, लव वैली डैम सेंस मर्सी। लेकिन मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि आप लोग जब इस तरह की किताबें आप ही लोग हम ही लोग चयन करते हैं तो चयन करते समय उसका कंटेंट, उसकी विषय सूची अवश्य देख लें कि हम अपने बच्चे को उसके स्टैंडर्ड के अनुकूल रचनाएं पढ़ने के लिए कहें। ये कविता भगवती चरण वर्मा की है। यहाँ हम लोग के स्टैंडर्ड के अनुकूल है। भगवती चरण वर्मा की एक कविता है, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले सभी अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, चलना है सबको। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। एक गाना है मोहम्मद रफी का, अफसोस हम न होंगे। तो जिंदगी तो चलती ही रहती है, उससे कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम सभी भिखमंगे हैं, बहुत चाहते हैं कि हमारे पास, हम कभी जिस तरह भिखमंगा कभी अपने को भरा पूरा नहीं समझता, उस तरह हम सभी हैं। यही तो माया है, यही इसीलिए दुनिया चल रही है। अगर सब संतोषी हो जाए दार्शनिकों के अनुसार, बड़े बड़े धर्म गुरुओं के अनुसार, स्वीट कंटेंटमेंट, जब संतोषी हो जाएंगे तो जिंदगी रुक जाएगी। इसलिए सब कुछ जरूरी है इस दुनिया में। मुझको एक छोटी सी कथा है। एक राजा ने कहा कि प्रजा बड़ी दुखी है, प्रभु सबको सुखी कर दो, मुझको बहुत दुख होता है। भगवान ने कहा कि राजा एक बार सोच लो, ऐसा हो नहीं सकता, सबको हम सुखी नहीं कर सकते। कहा नहीं नहीं प्रभु, बोला कि एक बार मैं तुमको मौका देता हूं। कहा कि ठीक है भगवान आप सबको सुखी कर दीजिए। कर दिया सुखी। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर ही तरह तरह की शिकायतें आने लगी। किसी ने कहा कि अरे वहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठा रहा है, नाला कोई नहीं साफ कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब कह रहा है। हमको क्या मतलब, हम सुखी हैं, हमको कुछ किसी हम क्यों जाए काम करने में। तो दुख है, इसीलिए तो हम सुख की चाह किया करते हैं। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। कोई सफल नहीं होता, असफलता ही अंत तक आदमी को लगता है कि ये तो हुआ ही नहीं, ये तो किया ही नहीं, ये करना रह ही गया। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपना बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम कल आज यहाँ कल वहां चले। और अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए थोड़ा सा समय मैं और लूंगा। ये शिवमंगल सिंह सुमन की छोटी सी कविता है, जिससे ये मैं अपनी ओर से भी कह रहा हूँ, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जिससे 26 साल की यात्रा मैंने यहाँ पूरी की और मैं उस प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ जहाँ से आप हाथ हिलाना है, गाड़ी निकल जाएगी। तो जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। कैसे हो गया?
है ना, लड़की मिली मेरे पिताजी यूनियन बैंक में है। तो जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। कितना लंबा रास्ता है, वो रास्ते का घमंड है, प्रमाद है। आओ कितना चलोगे, चलो, ये खत्म नहीं होने वाला है। तो जिस जिस दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। आप सभी हमारे पथ के राही रहे हैं और आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा धन्यवाद है। पथ के पहचाने छूट गए पर जो साथ उनकी याद रही, जिन जिन से मुझको स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जो साथ न मेरा दे पाए, होता है ऐसा, जो साथ न मेरा दे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर। हम अपने रास्ते चलते रहे, सब अपने रास्ते चलते रहे। जो साथ न मेरा दे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। ये तो राह चलता है। जो साथ न मेरा दे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं, इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर, कैसे चल पाता यदि मिलते चिरतृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। अगर दुख नहीं मिलता तो मैं कैसे चलता, तब तो मैं वहीं ठहर जाता। आभारी हूं मैं उन सब का दे गए व्यथा का जो प्रसाद। आभारी हूं मैं उन सब का दे गए व्यथा का जो प्रसाद। जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग अपने विद्यालय को और आगे बढ़ाएं, ये हमारी मन से इच्छा है। धन्यवाद। एक बार क्लियर हुआ कि it is your destiny that decides where you are supposed to go. Now I request our honorable principal sir to share his view about these two retirees. Thank you, Mukesh. Respected Ratnesh sir and our all-time favorite Umakant Maharaj ji, all learned colleagues. It is indeed a kind of occasion where we bid farewells to our teachers. So this time, for the first time, I think two of them have retired and they're leaving us. Otherwise, earlier only one such case used to come forward, or teachers used to leave us because of their husband's transfer or something like that. All of you have spoken and I've appreciated both Umakant and Dr. Ratnesh Sinha. I endorse all of them. As far as I can recollect, this has been one of the longest farewell occasions that we have extended nearly 2 hours. I wish it could have been more. Unfortunately, I'm tied up with attending an online session of CBSE at 11 o'clock. I have worked as resource person of CBSE long before. Since 1994, I was selected by CBSE for the ELT project. Why I'm mentioning that is, I'll give you the reason. After having been selected by CBSE for their ELT resource person, we were given the task of conducting workshops for 11 days of teachers, then 6 days. And few schools wanted for 3 days, and few schools wanted for 2 days, few schools wanted for 1 day. Then CBSE thought that no, we have to again frame up activities for resource persons so that they could take up these challenging tasks. The ones who wanted 11 days, 6 days, 3 days, 2 days, 1 day, we have to frame up certain activities. So I was fortunate, again, among 11 key resource persons of country, CBSE had picked me up. I sat with them,
and had framed activities for all such, say, training sessions. So that has come in hand to me. I came with few files that I thought I'll club it with today's farewell and I'll share it with you. But then I have to finally reduce that to about 5 minutes address to you for what I have in my clutter. But very soon, I think by Wednesday or Thursday, we will sit. Today is Wednesday. So by Friday or Saturday, we will sit again for a longer period of time. Meanwhile, I'll share a few things with you all on your WhatsApp so that you can go through that and then we can talk about it. Umakant has expressed a very great lesson to all of us that we need to remember. He spoke about that a part can never be bigger than the whole. We can never outgrow the institute in which we are working. We are just part of that. That we need to realize. Great lesson, Umakantji, given to you, given to all of us. And calling me a sant, मुझे अपना बचपन याद आता है कि मुझे मेरी चाचियाँ और मामियाँ सब यही कहते थे अपने बच्चों से कि देखो बनना है तो सुखमन जैसा बनो। मुझे नहीं समझ आता था कि मेरे और क्यों इशारा किया जाता था और मुझे कह गया कि मेरे को बहुत लोगों ने बहुत कुछ अच्छा बना दिया था। तो मैं उतना अच्छा था नहीं, लेकिन जब मैं अपने I used to listen to my aunts telling their children कि बनना है तो सुखमन जैसा बनो, तो मुझे लगता था नहीं कुछ मेरे को अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। खैर ये सब ऐसी बातें हैं। डेस्टिनी की बात अपने सर से सुना, बड़ा अच्छा लगा। मेरे पास अभी ऐसे किस्से हैं कि कैसे मैं DPS में आया, वो कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने एक बार YouTube में शेयर किया था। मैं भी वेलोर में था और वहां से मैंने कैसे अप्लाई किया, I'll narrate that story next time we meet। और कुछ बातें हैं जो इमीडिएटली मैं आपसे कह देना चाहता हूं, आप ध्यान में रखिए। First and foremost, I'm grateful to all teachers, all in charges for having worked so dedicatedly in the previous session. All those tasks that you have done, either as inter-house competition in charges or printing work, examination in charges, periodic tests, everything gets counted in the end, and we all get the appreciation that we are getting from the society because of each one of you. So, heartfelt thanks to all of you. Coming session now, we will be having, CBSE had introduced SQAAF, S-Q-A-A-F, that is called School Quality Assessment and Assurance. We were given to assess ourselves for the past 2 sessions, which we have been doing. But now the time has come where CBSE will be sending teams to make that assessment. So we'll have to again delve deeper into that. So you all can note down the terms so that you can yourself also see it online and see where we stand and rate ourselves. SQAAF, I'm repeating it, S-Q-A-A-F, please update yourself regarding that. SAFL, few of you might be aware of it. We know about SAFL, that is Structured Assessment for Analyzing Learning. It was taken up in classes 5 and 8 for 3 subjects. And the choice was given to the institutes whether they want to be part of that or not. But this session onwards, it will be made mandatory. So, computer faculty, I would request you to just look into those details that we need. In case we have any shortcomings, please let us know so that we can upgrade the computers, and we will have to enable these children to appear in SAFL. Recently, Amit, Prabhat and we had gone to attend a workshop at RIVA that was conducted by none other than the regional resource person, that is a regional officer of CBSE from Bhopal, Mr. Vikas Agarwal ji. I wanted to share whatever he had put across to all of us today, but then I will be sharing the minutes of the same. Planning for the same with you all, and then next time when we meet on Saturday, I shall take you through it in detail. The gist of that is, each and every point of the school where children are coming to us, you have to maintain the records meticulously.
One or two things keep in mind, as I have always been saying, whenever you write the name of the child, write it in capital letters, number one, and write, number two is, write their full names. Don't write half names. All full name has to be written in all the lists that you are making. And then all the entries, everything has to be checked meticulously, that we will go into detail when we meet next time. A parental calendar has been given to us by CBSE this year. That also you can go through online. What is it about? How we have to keep more and more number of parents. Like many of the things that we do in our morning assemblies, we make parents part of our assemblies. So that is, the value of that is being realized by CBSE. So that is something that we all can feel nice that we have been doing that. So that has to continue. Along with that, few other activities we'll have to take up. After going through the details, I have planned out certain activities every month for the parents, which I'll be sharing with you in the WhatsApp, which you can reflect upon and give us more ideas regarding how to execute them. NCERT books, all of you know, notice has been received by CBSE that few classes they're going to print out and supply a little later, that we have conveyed. You also as teachers need to talk. Many parents must be talking to you, few of them are talking to me. So I alone cannot talk to everyone, but then when we all combine together, we all can convey the same message. Parents are asking whether the books have to be bought now or they should wait for the new books. You can advise them that the choice is theirs. If they want to buy the older ones, they can buy, but they should wait. And if the next question that I ask you, अगर हम अभी purchase नहीं करते तो कैसे होगा? तो आप कह दें कि हम उन्हें help करेंगे. जो भी होगा, as a subject teacher for the month of April, आप बच्चों के साथ में PDF या फोटो खींच के images आप उस lesson की share कर सकते हैं. So this is what we have to convey to the parents. We have changed the sections. Sections have been reshuffled and आप लोगों के साथ में हुआ कि नहीं, लेकिन मेरा काम बहुत बढ़ गया है. Many parents are contacting me for again putting the child back into whichever section they want. So much so that I had to draft a letter and send it through you to the parents. So मुझे उम्मीद है कि आप सबने वो लेटर पढ़ा होगा. तो आप उस लेटर को एम्फसाइज करिए और बच्चों को प्रेरित करिए कि जिस सेक्शन में गए हैं उसमें रहें. और अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है 1 महीने के बाद में, अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं, एडजस्ट करना, we'll see what can be done. Lesson plans आप सभी को टीचर्स डायरी मिल गई होगी. Please submit them by 15th April. तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. धन्यवाद. I wish in the end on behalf of DPS Nigai family, both Umakant ji and Ritesh Sinha sir, a very happy retired life. और हम लोग सभी एक साथ हैं, कहीं दूर नहीं गए. सोशल मीडिया से हम हमेशा जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे. थैंक यू. ये थोड़ी सी मेरे को प्लानिंग थोड़ी सी पहले करनी पड़ गई थी. अदरवाइज मुकेश सर ने अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि नाश्ता भी साथ ही साथ आ जाता, खत्म होता तो. लेकिन क्योंकि इसको एडवांस किया गया है तो नाश्ता आने में थोड़ा सा विलंब होगा, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा. And I assure you that we all teachers will work hard to achieve the set task and will take our institutes to newer heights. Now I request our principal sir to kindly hand over the gift as a token of love and appreciation of DPS Nigai staff. I request ma'am to please coordinate. First it is for Umakant Maharaj.